Hello and welcome to the 17th session. Today we are going to start Indian economic development. In our last session we have solved the numericals of chapter 8 from macroeconomics. Here in this session we are going to start Indian economic development. Unit 4 starts from Indian economic development and there are 3 chapters in this unit. And the 3 chapters are: number 1, Indian economy on the eve of independence; number 2, Indian economy from 1950 to 1990; and the third chapter is liberalization, privatization and globalization. The whole unit is of 12 marks. See, all the 3 chapters are talking about Indian economy only. Actually, you can see here the whole Indian economy is divided into 3 chapters. The first chapter is about Indian economy on the eve of independence. Eve matlab at the time of independence. The next chapter talks about Indian economy from 1950 to 1990, means for 40 years. What are the changes in Indian economy after independence? We are going to talk about that in this chapter. In the last chapter, as we all know, in 1991 new policy was implemented in our country, new economic reforms, liberalization, privatization and globalization, that we are going to talk in chapter number 3. Here let's start the first chapter, Indian economy on the eve of independence, matlab at the time of independence, when Britishers left our country or when India got independence. At that point of time, how was our economy, that we are going to see here. Let's start the chapter with small introduction. Now, see, if we want to understand the present economy of our country, we need to know something about the history. Now, when we talk about history, we talk about British rule in our country. British rule. For almost 2 centuries, British ruled on our country, and finally on 15th August 1947 India got independence. Now, when British ruled our country for 2 centuries, then they made our country in a situation as we were only considered as the supplier of raw material, to Britishers for expanding their modern industries, and the importer of finished goods. This was the policy of Britishers. ब्रिटिशर्स यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटेन में लेके जाते थे, वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट बन के वापस कंट्री में आता था, एंड दे वर टेकिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम हियर एट अ वेरी चीपर रेट, एंड फिनिश प्रोडक्ट्स यहाँ फिर हायर रेट्स में बेचा जाता था. इट इज़ एक्चुअली exploitation done by the Britishers. Now, so this was the sole purpose of British colonial rule. तो ब्रिटिशर्स का सोल पर्पस क्या था? इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाना एंड वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट्स वापस फिर इंडिया में भेजना. अब कॉलोनियल रूल क्यों कहते हैं इसे? सी, फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंट्री किसी के ऊपर रूल कर रहा है, तो जो रूल करने वाली कंट्री है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ लगाती है, एंड
अदर देन द रूलिंग कंट्री जो कंट्री है उसको कॉलोनी कहते हैं। मतलब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल मतलब वी वेर अंडर द ब्रिटिशर्स रूल, तो हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे। ब्रिटिशर्स जो चाहते थे, रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे चाहते थे वो हम पे इम्प्लीमेंट करती थी। सो वी वर नोन एज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड एक्सप्लॉयटेशन वाज डन। सो हियर इज द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड इनका सोल पर्पस ये वाला था, टू सप्लाई द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड ब्रिटेन से फिर फिनिश प्रोडक्ट लेके आना। ये लोग ऐसा क्यों करते थे? टू एक्सपैंड इंडस्ट्रियल बेस इन ब्रिटेन, टू एक्सपैंड इंडस्ट्रियल बेस इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल बेस एक्सपैंड करने के लिए दिस वाज द पॉलिसी they have implemented. Now, to understand the topic more clearly about Indian economy, let's understand these two topics. The topic is before the advent of British rule. मतलब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उससे पहले इकोनॉमी कैसी थी, एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल मतलब जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे उस समय इंडियन इकोनॉमी कैसी रही थी। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक विथ बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उससे पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी? इंडियन इकोनॉमी वॉज इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। वी वर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, वी वर इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। दो एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी में उस समय था। इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री था। मोस्ट ऑफ द पीपल, अभी भी इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। मोस्ट ऑफ द पीपल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, लाइवलीहुड मोस्ट ऑफ पीपल एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे, मोस्ट ऑफ द पीपल। इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में रुके हुए थे। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी इंडिया में थी। इन स्पाइट ऑफ एग्रीकल्चरल कंट्री, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी इंडिया में उस समय थी। नॉट ओनली दैट बट हैंडीक्राफ्ट बिजनेस, दैट वाज ऑल्सो इंडस्ट्रीज हैंडीक्राफ्ट की भी बहुत सारी थी इन द फील्ड ऑफ कॉटन, सिल्क, textiles, etc. These industries were also flourishing. Metal and precious stones, metal and precious stones, these business were also very much developed in our country. Now our product was very well enjoyed in the other market, other countries market. India से import ज़्यादा कंट्री करती थी। द रीज़न फॉर दैट इज़ फाइन क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, फाइन क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड वन मोर थिंग हियर, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स ज़्यादा थे, क्राफ्टमैनशिप। द क्वालिटी ऑफ द वर्कर्स was also one of the reason that Indian business was flourishing in other country. So this was the situation of our economy before the Britishers came here. Let's see the topic once again. Indian economy was independent economy. Most of the people की जो livelihood थी वो agriculture ही थी. In spite of this, manufacturing business भी flourishing थे. Handicraft business was also much developed. Cotton, silk, textile, precious stones, these business were also been done in our country, and the exports were more during those days. The two reasons for that: number one, fine quality of raw material, and the craftsmanship was also of standard quality. Now during the British rule, Indian economy कैसी थी उसकी बात करते हैं. When Britishers were ruling our country, they were working on only one policy, and the policy is protect and promote their home country rather than developing Indian economy. उन्होंने कभी भी ऐसे स्टेप्स नहीं लिए जिससे इंडियन इकोनॉमी डेवलप हो, लेकिन उनके जो भी स्टेप्स थे वो
प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर होम कंट्री, मतलब ब्रिटेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्रिटेन को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रियल बेस ज़्यादा वहाँ स्ट्रॉन्ग हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ब्रिटेन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वैसी ही पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने इंडिया में यूज़ की थी. एंड पॉइंट नंबर 2, when Britishers were here, they never made any sincere efforts to estimate India's national income and per capita income. They never made any sincere efforts to find out the national income of our country and the per capita income इंडिया के बारे में. However, there were few people जिन्होंने कुछ estimates दिए हैं नेशनल इनकम के बारे में एंड पर कैपिटा इनकम के बारे में. एंड the notable people were V.K.R.B. Rao, R.C. Desai, William Digby, Findlay, Shreyas. बट इन चारों में से V.K.R.B. राव के जो एस्टिमेट्स थे इंडियन इकोनॉमी के नेशनल इनकम के बारे में एंड पर कैपिटा इनकम में, दे वर मोर सिग्निफिकेंट. ओके, V.K.R.B. Rao can also be asked as one more question. It was V.K.R.B. Rao whose estimates were considered very significant. Now, what are his data regarding the national income and the per capita income? First half of 20th century. During this year, the country's growth, the whole country's growth was less than 2%. The whole country's growth was less than 2% and only half percentage growth in per capita output per year. This was the estimate from V.K.R.B. Rao. It was during the first half of 20th century that country's growth was less than 2% and only half percent growth in per capita output per year. Now, Indian economy on the eve of independence. To understand the topic, we are going to understand in different sectors how was the country's situation. मतलब agriculture में how was the situation at the time of independence, similarly for industry, foreign trade, demographic, occupation and infrastructure. In all these sectors, how our economy was at the time of independence, that we are going to see in detail. Let's start with the agriculture. At the time of independence, how was agriculture, that we are going to see here. Now, 85% of the people lived in villages and they depend on agriculture. In spite of 85% of the people engaged in the agriculture activity, agriculture जो इंडिया में था वो backward and stagnant था. There were certain reasons that we are going to see now, जिसकी वजह से agriculture हमारा backward ही रहा. इतने सारे लोग agriculture में थे फिर भी. So the topic is features of agriculture. What were the reasons कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो इतना बैकवर्ड ही रहा, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, और द टॉपिक इज फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर. द फर्स्ट पॉइंट इज लो प्रोडक्टिविटी. द सिचुएशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन एग्रीकल्चर वॉज बैकवर्ड. द रीज़न फॉर दैट इज फार्मर्स के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी. देयर वॉज लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इरीगेशन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं थी उस समय पे. Because of that reason, the productivity was low. The other reason is Britishers never spent anything on technological improvements. As we know that Britishers were ruling on our country, they never done any sincere efforts for the improvement in technology. And उस समय के जो farmers जो थे, they were also not having any resources, financial or other type of resources, कि वो agriculture को आगे लेके आएं. Despite large area under cultivation, still the production or the productivity remains low. So the first feature of agriculture at the time of independence is low productivity. Why there was low productivity? Because technologically
we were not sound, irrigation facilities were also not there, and Britishers never spent anything for the technological improvement, and farmers were also not having any proper resources. In spite of the large area under cultivation, the production was low. Now, the second feature of agriculture, Indian agriculture at the time of independence, is loss due to huge cost involved. Very important point, understand it properly. Owners and tillers were different. अब ऑनर्स एंड टिलर्स में क्या डिफरेंस है? ऑनर्स वो होते हैं जिनका लैंड होता है, एंड जो उस पर टिलिंग करते हैं दे आर नोन एज टिलर्स. सो ऑनर्स एंड टिलर्स दोनों अलग अलग थे उस समय पे. ऑनर्स एंजॉयड द आउटपुट बट डिड नॉट बेयर एनी कोस्ट. मतलब टिलर्स जो टिलिंग करते थे उससे आउटपुट जो रहता था उसमें ऑनर्स का शेयर रहता था, बट टिलर्स जो एक्सपेंस करते थे ऑनर्स did not bear any cost, so the whole cost was to be borne by the tillers, and जो आउटपुट है उसमें ऑनर्स अपना राइट एंजॉय करते थे, जिसकी वजह से टिलर्स के पास जो भी बचता था वो सिर्फ सर्वाइवल हो सके उतना ही बचता था, बिकॉज द होल कोस्ट वेंट ऑन द शोल्डर्स ऑफ द टिलर्स, एंड जो भी आउटपुट रहता था दैट वेयर एंजॉयड बाय द ओनर्स ऑल्सो. सो टिलर्स के पास जो बचता था वो सिर्फ सर्वाइवल जितना ही बचता था. दैट वॉज द सिचुएशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट नंबर 3, इरीगेशन फैसिलिटीज वर नॉट अवेलेबल. ब्रिटिशर्स नेवर डन एनी सिंसियर एफर्ट्स, या उन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया ही नहीं इंडिया के एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए. नो इनिशिएटिव इज टेकन बाय द ब्रिटिशर्स. So the agriculture has to depend on the rainfall. Now the rainfall, as everyone knows, it is very uneven, or you can say the monsoon is very unpredictable. So fluctuations आते रहते थे crop में, जिसकी वजह से again you can say that the agriculture remained backward. And the last point in the features of agriculture is subdivision of land. See, at the time of partition, इंडिया एंड पाकिस्तान जब अलग हुए तो जो हाईली फर्टाइल लैंड है दैट वेंट टू द पाकिस्तान, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस सब डिविजन ऑफ लैंड वाज डन. मतलब सब डिविजन ऑफ लैंड मतलब द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू मेनी डिफरेंट सब पार्ट्स, जिसकी वजह से मैनेजमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता था, एंड हेंस अल्टीमेटली देयर इज़ नो एफिशिएंसी. सी इफ देयर इज होल वन पीस ऑफ लैंड एंड द वर्क इज डन by many people or few people on that land, the efficiency will increase. But if you divide the land into few parts and then the work is done on that, then there is no efficiency and the management becomes difficult. So the 4 points we have seen here about the features of Indian agriculture at the time of independence. इसमें first point था low productivity. प्रोडक्टिविटी कम क्यों थी? बिकॉज टेक्नोलॉजी, इरीगेशन ये हमारे पास उतना नहीं था, फार्मर्स के पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, एंड जिसकी वजह से अल्टीमेटली द प्रोडक्शन और द प्रोडक्टिविटी रिमेन्ड लो. द सेकेंड पॉइंट वी हैव सीन हियर दैट इज़ कोस्ट ज़्यादा था, जिसमें हम बात करेंगे ऑनर्स एंड टिलर्स की. ऑनर्स हैं वो एंजॉय करते हैं आउटपुट को, लेकिन कोस्ट जो है वो सिर्फ टिलर्स को ही बेयर करना पड़ता था. तो टिलर्स के पास जो बचता था that was merely survival जितना ही उनके पास रहता था. Point number 3 is lack of irrigation. Britishers never done any sincere efforts, or they never had taken any initiative to develop the agriculture. So because of lack of irrigation facility, the agriculture has to depend on the rainfall, and the monsoon very unpredictable. Because of that there is fluctuation in the crops, so agriculture could not develop. Last is subdivision of land. At the time of independence, or when there was partition of India and Pakistan, fertile land went to the Pakistan, and again there was subdivision of the land, जिसकी वजह से management becomes difficult, and hence no efficiency was seen in the agriculture. So these are the 4 points of Indian agriculture at the time of independence.
Hello and welcome back to the 18th session. We are discussing Indian Economic Development, Chapter 1, and the chapter is Indian Economy on the Eve of Independence. On the eve of independence means at the time of independence, how was our Indian economy? The chapter is about that. Now, in our yesterday's session, we have seen the topic of features of agriculture at the time of independence, wherein we have seen few points. Now today we are going to start with the topic which is causes of stagnation and backwardness or reasons. ऐसे क्या रीजंस थे जिसकी वजह से इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो स्टैग्नेंट रहा एंड बैकवर्ड रहा. स्टैग्नेंट मतलब जिस पॉइंट पे है उसी पॉइंट पे रहा, आगे नहीं आ सका, या तो कह सकते हैं कि बैकवर्ड ही रह गया, आगे नहीं आया. Few points in that. Let's start with the first point. The first point is land revenue system. Very important point and easy to understand. The point का जो explanation है, it is such a story जैसा topic है. So pay attention everyone. Land revenue system. ज़मींदारी सिस्टम इंडिया में सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी ने इम्प्लीमेंट की थी. अब उस ज़मींदारी सिस्टम में क्या था, लेट्स सी. प्रॉफिट जो मिलता था वो कल्टीवेटर्स को नहीं जाता था, वो ज़मींदार्स ले जाते थे. मतलब अगर फार्मर कोई फार्मिंग कर रहा है तो उससे जो प्रॉफिट फार्मर्स को मिलना चाहिए वो फार्मर्स को नहीं मिलता था, वो ज़मींदार लेके जाता था. Irrespective of the economic condition of the cultivators, जमींदार्स कलेक्ट द रेवेन्यू. रेवेन्यू मतलब जो लगान और रेंट जो कल्टीवेटर्स जमींदार्स को पे करते थे उसकी बात है. वंस अगेन, प्रॉफिट मतलब द रेवेन्यू, द रेंट, लगान, ये सब चीज़ कलेक्ट करते थे जमींदार्स कल्टीवेटर्स से. फिर अगर कल्टीवेटर्स की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो या ना हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर्स, जमींदार्स कलेक्ट द लगान, रेंट और रेवेन्यू. अगर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है कल्टीवेटर्स की, फिर भी ज़मींदार उनसे रेंट या रेवेन्यू कलेक्ट करते ही थे. अब ये ज़मींदार जो थे ये रेंट रेवेन्यू कलेक्ट करके कॉलोनियल गवर्नमेंट को देते थे, मतलब ब्रिटिशर्स को देते थे. सी, ज़मींदार्स डिपॉजिट द रेवेन्यू टू द कॉलोनियल गवर्नमेंट. ज़मींदार जो थे वो कल्टीवेटर से कलेक्ट करके देते थे कॉलोनियल गवर्नमेंट को, एंड उसके लिए डेट एक फिक्स था. ज़मींदार जो कॉलोनियल गवर्नमेंट को रेवेन्यू देंगे उसका डेट एक फिक्स था. अगर वो नहीं कर सकते हैं, कौन, ज़मींदार्स, इफ़ द ज़मींदार्स आर फेलिंग कि वो रेंट या रेवेन्यू कलेक्ट करके नहीं देते हैं, दे लूज देयर राइट. तो वो ज़मींदार के अंडर जितने भी कल्टीवेटर्स हैं, ही विल लूज दोज कल्टीवेटर्स. एंड ज़मींदार्स वेर फ्री टू कलेक्ट एज मच एज रेवेन्यू दे वांट फ्रॉम द टिलर्स. ज़मींदार्स को जितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है वो रेवेन्यू टिलर से कलेक्ट कर सकते थे. दे वर फ्री टू कलेक्ट एज मच एज रेवेन्यू फ्रॉम द कल्टीवेटर्स. अब अगर मान लो ऐसा हो जाए कि कोई टिलर या कल्टीवेटर नहीं दे पाता है रेवेन्यू, तो दे वर इजेक्टेड. इजेक्ट द टिलर, इजेक्ट मतलब निकाल देते थे उस ज़मीन से या उस लैंड से, उसको निकाल देते थे टिलर को, अगर वो रेवेन्यू नहीं दे पाता है तो. अब फार्मर्स के पास या टिलर्स के पास और कोई ऑप्शन था नहीं उस समय. नो अदर ऑल्टरनेटिव, नो अदर सबसिस्टेंस. सो this is only one option, that they have to pay the revenue. Now the whole topic, let's understand it once again in the easy term. See, actually this is land revenue system है, ये एक ट्रायंगल की तरह काम कर रहा है, जिसमें एक जगह पे हैं टिलर्स जिनको कल्टीवेटर्स भी कहते हैं, then there is जमींदार्स,
and finally is the Britishers. Okay, now जमींदार्स रेंट और रेवेन्यू, रेंट कह सकते हो, रेवेन्यू कह सकते हो, वो टिलर्स से लेते थे एंड वो पास कर देते थे ब्रिटिशर्स को। ज़मींदार्स हैं वो टिलर्स से जितना चाहे उतना रेंट या रेवेन्यू लेते थे एंड वो पास करते थे ब्रिटिशर्स को। वो ब्रिटिशर्स को जब रेवेन्यू या रेंट देंगे उसकी एक डेट फिक्स है। अगर ज़मींदार ब्रिटिशर्स को फिक्स डेट पे रेवेन्यू नहीं दे पाते हैं, दे सकते हैं या दे पाते थे, तो ज़मींदार लूज देयर राइट एंड ज़मींदार्स वर फ्री टू कलेक्ट एज मच एज रेवेन्यू फ्रॉम द टिलर्स एंड फिर वो ब्रिटिशर्स को देते थे एंड ज़मींदार्स वर एंजॉइंग अ वेरी लग्जरियस लाइफ। मान लो अगर टिलर्स हैं वो ज़मींदार्स को रेंट या रेवेन्यू नहीं दे पाते थे, तो टिलर्स को क्या किया जाता था? इजेक्ट मतलब उनको निकाल दिया जाता था। अब उस समय टिलर्स के पास और कोई ऑप्शन था नहीं, तो दिस इज़ ओनली वन सब्सिस्टेंस फॉर देम, दैट कैसे भी करके ज़मींदार्स को वो रेंट या रेवेन्यू है वो दे दे। दिस इज़ अबाउट लैंड रेवेन्यू सिस्टम। Now, the second point in the topic causes of backwardness and stagnation. इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो बैकवर्ड क्यों रह गया, उसके रीजंस हम देख रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट देखा दैट इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम या ज़मींदारी सिस्टम की बात हमने अभी कर ली। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर है वो बैकवर्ड हो गया। नाउ इन सिंपल टर्म्स पहले समझते हैं कि कमर्शियलाइजेशन है क्या। मूविंग फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स हैं, उनके एग्जांपल्स हैं वीट, राइस, ये सब हैं वो फूड क्रॉप्स हैं। नाउ कैश क्रॉप्स हैं वो जूट, शुगर केन, इंडिगो, ये सब हैं, ये कैश क्रॉप हो गया। दैट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मूविंग फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू द कैश क्रॉप्स। ना ये जो कैश क्रॉप्स हैं ये ब्रिटेन में बहुत डिमांड में थे उस समय। सो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, दे फोर्स्ड द फार्मर्स टू ग्रो द कैश क्रॉप्स। ये फार्मर्स को फोर्स करते हैं कि गो फॉर द कैश क्रॉप इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स एंड दे वर ऑल्सो गिवन कैश इन एडवांस। फार्मर्स को एडवांस में मनी भी दिया जाता था एंड फोर्स भी किया जाता था कि वो कैश क्रॉप कल्टीवेट करें, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप तो बढ़ गया। लेकिन ये कैश क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ने से फार्मर्स की कोई इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई, बिकॉज फार्मर्स ऑलरेडी इंडेटेड थे। उन्होंने ऑलरेडी पहले से कहीं से कर्जा लिया हुआ या लोन लिया हुआ होता है, तो ये पैसा जो है वो उसी में चला जाता है। कुछ ही पैसा उन लोगों के पास बचता था, लेकिन इससे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई। एंड ब्रिटेन में कैश क्रॉप में से सबसे ज़्यादा डिमांड इंडिगो की थी। कैश क्रॉप है ये जो ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में डाई करने के लिए यूज़ होता था। तो दे वर फोर्सिंग द इंडियन फार्मर्स टू गो फॉर द कैश क्रॉप, स्पेशली व्हाट, द इंडिगो, बिकॉज इसकी डिमांड उनके वहाँ ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा थी। एंड कैश क्रॉप के लिए ये लोग फोर्स भी करते थे फार्मर्स को, नॉट ओनली दैट बट दे वर गिविंग द कैश इन एडवांस ऑल्सो टू द फार्मर्स, because of which the production of cash crop increased one hand, but because of this the economic condition of the farmers did not improve. So that is the second point why our agriculture remained backward. दो पॉइंट हमने देख लिए हैं. The first point was land revenue system, the second is commercialization of agriculture.